تھی۔ وہ اپنے بیٹے کے ساتھ بہت خوش تھی کیونکہ اس کے پاس سندر سا گھر تھا، بھوجن تھا اور اپنے بیٹے کا پیار۔ چڑیا کے پڑوس میں ایک گوری کوی رہتی تھی جو چڑیا کی پڑوسن تو تھی مگر وہ چڑیا سے بہت جلتی تھی۔ وہ ہر سمے چڑیا کو نقصان پہنچانے کے چکر میں رہتی کیونکہ وہ کسی نہ کسی طرح چڑیا سے اس کا سندر گھر چھیننا چاہتی تھی۔ کالو جی، کوئی ایسا اپائے بتاؤ جس سے یہ چھوٹی چڑیا مر جائے اور کسی کو مجھ پر شک بھی نہ ہو۔ گوری، اسے مارنے سے تمہیں کیا ملے گا؟ اس کا گھر۔ میں اس کے چھوٹے سے بیٹے کو گھر سے نکال کر گھر پر قبضہ کرنا چاہتی ہوں۔ تو پھر ہم ایسا کرتے ہیں، کسی طرح چڑیا کو کسی وہم میں ڈال دیتے ہیں جس سے وہ دھیرے دھیرے مر جائے گی اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ یہ کھیل ہم نے کھیلا ہے۔ ہاں کالو جی، ہم ایسا ہی کریں گے۔ دوسرے دن چڑیا گوری کوی کے پاس آتی ہے۔ گوری، آج میری صحت کچھ ٹھیک نہیں ہے، چلو ہم بلبل سے دوا لے آتے ہیں۔ کیا ہوا چڑیا؟ میرے گلے میں درد ہے اور ساتھ میں ہلکا ہلکا بخار بھی ہے۔ چڑیا، آپ گھر جائیں، میں اور گوری ادھر ہی جا رہے ہیں، ہم بلبل کو آپ کے گھر ہی لے آتے ہیں۔ مگر وہ کیوں کالو؟ چڑیا کو وہیں جانے دو نا۔ بتاتا ہوں چڑیا، آپ جائیں، میں ابھی بلبل کو لے کر آتا ہوں۔ پھر چڑیا اپنے گھر چلی جاتی ہے۔ گوری، اب تمہاری اچھا پوری ہوگی، موقع اچھا ہے چڑیا کو وہم میں ڈالنے کا۔ چلو تم میرے ساتھ بلبل کے پاس چلو، میں راستے میں تمہیں ساری بات بتاتا ہوں۔ پھر گوری اور کالو بلبل کی طرف جاتے ہیں۔ ہم بلبل کو کچھ چاول دے کر چڑیا کو کینسر کی مریضہ بنانے والے ہیں۔ گوری، کیسا لگا میرا اپائے؟ واہ کالو، مان گئی میں تمہارے دماغ کو۔ بلبل، یہ لو چاول اور ایک ہمارا کام کرو۔ کیا کالو کوے، کیا کام ہے تمہیں مجھ سے؟ میں بتاتی ہوں بلبل تمہیں۔ میرے پڑوس میں ایک چڑیا رہتی ہے، اسے بخار ہے، تم ہمارے ساتھ چلو اور اسے وہم میں ڈال دو۔ وہم میں؟ وہ کیسے؟ تم چڑیا سے کہو کہ اسے کینسر ہو گیا ہے اور وہ کچھ ہی دنوں میں مر جائے گی، ایسے وہ مر جائے گی سچ میں ہی، اور ہم قبضہ کر لیں گے اس کے گھر پر۔ کچھ سوچنے کے بعد بلبل لالچ میں آ کر کوے اور کوی کے ساتھ چلی جاتی ہے۔ ایسے بخار ہے اور ساتھ گلے میں درد بھی۔ میں نے دیکھ لیا ہے چڑیا، آپ کو تو کینسر ہو گیا ہے، آپ کا بچنا اب بہت مشکل ہے۔ یہ سن کر چڑیا ڈر جاتی ہے۔ کیا؟ یہ آپ نے کیا کہا؟ بلبل کا بہت تجربہ ہے، بڑی ڈاکٹر ہے، بلبل جو کہتی ہے وہ سچ ہوتا ہے۔ ہائے چڑیا، اب تم مر جاؤ گی، کینسر ہو گیا ہے تمہیں، میں اب کچھ نہیں کر سکتی۔ ایسا کہتے ہوئے بلبل وہاں سے چلی جاتی ہے اور چڑیا بیٹھی بیٹھی گر جاتی ہے۔ اس کا چھوٹا سا بیٹا اپنی مما کو دیکھ کر بہت دکھی تھا، مگر وہ ابھی اس سے بڑھ کر کچھ نہیں جانتا تھا کہ اس کی مما بیمار ہے۔ چڑیا، اب اپنے گھر سے نکلنے کی کوشش نہ کرنا، ایسا نہ ہو کہ تم کہیں راستے میں ہی مر جاؤ، بہتر یہی ہے کہ تم اپنے گھر میں ہی مرو۔ ایسا کہتے ہوئے کوا اور کوی اپنے گھر چلے جاتے ہیں۔ اگر میں مر گئی تو میرے چھوٹے سے بیٹے کا کیا ہوگا؟ کون لا کر دے گا میرے بیٹے کو بھوجن؟ چڑیا ایسے سوچ سوچ کر روئے جا رہی تھی۔
ऐसे ही 3-4 दिन गुजर जाते हैं। चिड़िया अपने घर में ही थी। वो तो अब उड़ती भी ना थी। घर में जो भोजन जमा था, चिड़िया वो अपने बेटे को दे देती और खुद खाना और पीना भी छोड़ दिया था। गोरी 2-4 दिन से चिड़िया को कहीं आते जाते नहीं देखा। लगता है हमारा उपाय काम कर गया और चिड़िया ने घर से बाहर निकलना छोड़ दिया है। अब जल्दी से वो चिड़िया मर जाए और उसका घर मुझे मिल जाए। यार मिठू, कई दिन से चिड़िया ना तो नदी पर आती है और ना ही भोजन लेने। चलो तो जाकर चिड़िया को देखते हैं, कहीं वो बीमार तो नहीं है। फिर तोता और कबूतर चिड़िया के घर जाते हैं। क्या आपको कैंसर है? परंतु हमें तो किसी ने नहीं बताया। अभी थोड़े ही दिन पहले गोरी और कालू बुलबुल को लाए थे मेरे घर और बुलबुल मुझे बता कर गई है। चिड़िया बहन, ऐसे तो आप मरने से पहले ही मर जाओगी। हमारे साथ चलो, बाहर की ताजा हवा में सांस लो, इससे आपको अच्छा महसूस होगा। कबूतर, अब क्या बाहर जाना, न जाने किस समय मैं मर जाऊं। हाँ, अगर मैं मर गई तो मेरे बेटे का ध्यान रखना। मेरा बेटा अभी छोटा है। जब तक आपको पता नहीं था कि आपको कैंसर है, तब तक भी तो आप उड़ती थी, बाहर जाती थी, सब काम करती थी। अब हार मान गई हो। अगर ऐसा करोगी तो आप बहुत कमजोर हो जाओगी। मगर चिड़िया थी कि घर से बाहर निकलने के लिए तैयार न थी। फिर तोता और कबूतर वहाँ से चले जाते हैं। चलो गोरी, जाकर देखें कि चिड़िया किस हाल में है। कालू, उसे अच्छे से डराना और उसका वहम और बढ़ा देना। फिर वो दोनों पति पत्नी चिड़िया के घर जाते हैं। चिड़िया मेरी एक जानने वाली कौवी थी, उसको भी कैंसर हुआ था। बेचारी 10 दिन बाद ही मर गई थी। बुलबुल ने भी तो रास्ते में मुझे बताया ही था कि चिड़िया भी 10 दिन के अंदर अंदर मर जाएगी। चिड़िया रोए जा रही थी, उससे अब बात भी न होती थी। उसके वहम और मौत के डर ने उसे बहुत कमजोर कर दिया था। गोरी एक बार बुलबुल से पूछती तो कि कोई दवा दे देती। नहीं चिड़िया, अब कोई दवा तुम पर असर नहीं करने वाली। मेरा ध्यान तो हर समय तुम्हारे घर की तरफ ही रहता है। मेरे घर की तरफ? वो क्यों? इसलिए कि कहीं तुम घर से बाहर तो नहीं गई। मुझसे अब कहाँ उड़ होता है। मेरे पंख अब मेरा साथ नहीं देते। बुलबुल के बेटे बुलबुले को कल से बुखार था। बुलबुल पहले तो यही समझती है कि उसे ठंड लग गई है, मगर जब बुखार बढ़ जाता है तो बुलबुल उसका टेस्ट करवाती है और वो ये देखकर बहुत परेशान हो जाती है कि उसके बेटे को तो कैंसर है। मेरे बुलबुले को कैंसर हो गया और मुझे पता ही नहीं चला। ऐसा कैसे हो सकता है? कुछ दिन पहले तक तो मेरा बेटा स्वस्थ था। फिर बुलबुल का ध्यान चिड़िया की तरफ जाता है। मैंने लालच में आकर झूठ बोला और चिड़िया को वहम में डाला। शायद ये ऊपर वाले ने मुझे मेरे किए की सजा दी है। बुलबुल रोने लग जाती है। मैं आज ही चिड़िया को सब सच सच बता दूंगी। चिड़िया, आज मैं आपकी कोई बात नहीं सुनूंगा, बस मेरे साथ चलें। हम किसी और डॉक्टर पक्षी से आपका चेकअप करवाएंगे। कबूतर भैया, मेरी बात मान जाएं। मैं कहाँ उड़ सकती हूँ? अगर थोड़ी हिम्मत और हौसला करोगी तो आप मेरे साथ जा सकती हो। अगर आप नहीं मानते तो चलो, मैं आहिस्ता आहिस्ता आपके साथ चलती हूँ। फिर कबूतर चिड़िया को साथ लेकर उसके घर से निकलता है। थोड़ी ही दूर बुलबुल चिड़िया के घर आ रही थी। वो उन्हें रास्ते में रोक लेती है।
बुलबुल, क्या बात है? आप रो क्यों रही हो? चिड़िया बहन, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मैंने कौवे और कौवी के कहने पर आपसे झूठ बोला कि आपको कैंसर है। ये सुनकर चिड़िया चौंक जाती है। ये आप क्या कह रही हैं बुलबुल? मैंने लालच में आकर अपने पेशे से बेईमानी की। आप बिल्कुल स्वस्थ हैं, आपको कैंसर नहीं है। ऊपर वाले ने मुझे अपने बुरे काम की बहुत बड़ी सजा दी है। मेरे बेटे को ब्लड कैंसर हो गया है। अगर आप मुझे माफ कर दें तो शायद ऊपर वाला भी मुझे माफ कर दे। फिर रोती हुई बुलबुल वापस चली जाती है। फिर चिड़िया एक नजर कबूतर की तरफ देखती है। इतना तो पता चल गया कि वहम की बीमारी कैंसर से भी बड़ी है। ऐसा कहते हुए कबूतर हंसने लग जाता है और फिर चिड़िया उसी समय खुद को बेहतर महसूस करने लग जाती है और वापस घर आ जाती है और खुद में नई हिम्मत और हौसला पैदा करती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि कभी वहम ना करो और आशा तो कभी ना छोड़ो, क्योंकि आशा के सहारे ही तो दुनिया कायम है।